G20 લીડર સમિટ ઇવેન્ટમાં વાહન માટેના એક્સેસ કંટ્રોલ પૂરું પાડવા માટે સુરત સ્થિત સ્ટાર્ટઅપનું પસંદગી કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત ખાતે કંપની સ્થાપક તરીકે સંજીત ગૌરવ, સતીશ નાયર, સુહાસ અરોરાએ માહિતી આપતા કહ્યું હતું કે પાર્ક 360 સુરતનો સ્માર્ટ પાર્કિંગ અને મોબિલિટી સોલ્યુશન પ્રદાન કરતું સ્ટાર્ટઅપ છે. પાર્ક 360 2021માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તે પ્લેટફોર્મ માય સિટીના નામથી માર્કેટમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. એ પ્લેટફોર્મ અને એના પ્રોડક્ટ પર કામ કરીને અમે પાર્કિંગ અને મોબિલિટી પર એક નવું પ્લેટફોર્મ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. 2022માં એક વર્ષ પછી નવા પ્લેટફોર્મ પર સ્વિચ કર્યું. તે પછી અમે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં ઘણા સફળ પ્રોજેક્ટનો અમલ કર્યો. બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સની વ્યવસ્થાપન અને પાર્કિંગ અમલીકરણની તમામ જવાબદારીઓ અમારા સોફ્ટવેર પ્લેટફોર્મ દ્વારા સંભાળવામાં આવે છે. ભાભા ઓટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર હોય કે કોણાર્ક મંદિર હોય, જટાયુ અર્થ સેન્ટર હોય કે પછી બેંગ્લોર સિટી સ્ટેશન હોય, બોસ હેડક્વાર્ટર બેંગ્લોર જેવા ઘણા હાઈ પ્રોફાઇલ ક્લાયન્ટ્સ સરકારી અને બિન સરકારી કોર્પોરેટ પાસે તેમના હેડક્વાર્ટરમાં અમારા સોલ્યુશન હોય છે. અમે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં પોતાની જાતને સાબિત કરી છે. G20 સમિટ એક એવી ઘટના હતી કે જ્યાં દેશ વિદેશના નેતાઓ અને VIPઓની સુરક્ષા એક્સિસ કંટ્રોલ એકદમ પડકારરૂપ હતું. માત્ર એક PM નહીં, પરંતુ 30થી વધુ રાજ્યના વડા અને આંતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓ એક જગ્યાએ ભેગા થવાના હતા. ભારત સહિત દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં આ પ્રકારનો મેળાવડો પ્રથમ વખત થઈ રહ્યો હતો. તેમના તમામ અધિકૃતતા અને એક્સિસ નિયંત્રણની જવાબદારી પોતે જ એક મોટી જવાબદારી હતી. અમારી ટીમે ઉકેલ વિકસાવવા માટે સખત મહેનત કરી હતી. પ્રગતિ મેદાન ખાતે G20 લીડર સમિટ ઇવેન્ટમાં મુખ્ય દ્વારથી આવનારા તમામની અધિકૃતતાના અમારી સિસ્ટમમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. જ્યારે મુખ્ય દ્વાર પર સુરક્ષા એજન્સીઓ હાજર રહીને ફરજ બજાવી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની સાથે સાથે પાર્ક 360ના તમામ સભ્યો પણ ડિજિટલ સુરક્ષા સાથે ખડે પગે હાજર રહ્યા હતા. સિસ્ટમ એટલી સરળ બનાવવામાં આવી હતી કે વાસ્તવિક સમયના અહેવાલો અને અધિકૃતતાના તમામ પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. અમારું સોલ્યુશન ફરજ પર હાજર રહેલા તમામ સિક્યોરિટી એજન્સીઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થયું હતું. અમારા સોલ્યુશનનો ઉપયોગ કરનાર સુરક્ષા એજન્સીઓ અને અન્ય વિદેશ મંત્રાલયોએ પણ અમને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે. સુરત જેવા સ્થળેથી આવીને અમે આખી સિસ્ટમને કેટલી સારી રીતે હેન્ડલ કરી તે જોઈને તેઓએ પ્રતિભાવ આપ્યા હતા, તેમજ પ્રભાવિત પણ થયા હતા. આ તમામ ઘટના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં થઈ હતી. અમને તેમની સાથે સીધો વાત કરવાનો મોકો ન મળ્યો, પરંતુ મોદીજી અમારા એક્સિસ પોઈન્ટ પર રોકાયા અને અમારી સિસ્ટમનું નિરીક્ષણ કર્યું અને સુરક્ષા એજન્સીઓ પાસેથી જરૂરી માહિતી મેળવી હતી. श्योर. सो मैं संचित गौरव, CEO एंड को फाउंडर ऑफ पार्क 360. ये सूरत बेस्ड हमारी कंपनी है और हम लगभग 2-2.5 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं. हमने इसके पहले भी काफ़ी हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और कॉरपोरेट्स के लिए गवर्नमेंट के साथ काम करी हुई है. और इन्हीं में से एक हमारा जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट है जो इवेंट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड हैं. जब प्रगति मैदान पे ये G20 का इवेंट जो जिस स्केल का हो रहा था और जिसमें हमारी बहुत सारी जो स्पेशलिटी है उसकी रिक्वायरमेंट थी, तब उन्होंने हमें अप्रोच किया. जैसे इसके पहले हमने बॉश, BARC, BKC, काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहा हुआ है. तो इस तरह से ये मौका हमें आया. बट ये मौका आया उसके साथ में बहुत चैलेंजेस के साथ आया. तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत बड़ी थी, लेकिन रिस्क और बड़े थे. जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमें बहुत क्लियरली बताया गया कि आपका सिस्टम आपको पहले प्रूव करना होगा कि ये सिस्टम चलता है. हम डेमो के लिए गए. एक बार डेमो 27 से ज़्यादा एजेंसीज़ को हमने डेमो दिया, उन्होंने क्लियर किया. कुछ लोगों ने एंड मोमेंट पे चेंजेस सजेस्ट किए. एक हफ्ते का टाइम दिया गया, संडे टू संडे का टाइम था. एक वीक के अंदर हमने वो नए सॉल्यूशंस करके दिए और सभी से हमने अप्रूवल लिया. इस तरह हमारी एंट्री हुई. लेकिन उसके साथ भी कंडीशंस ये थे कि आपका सिस्टम 30 to 60 सेकेंड्स से ज़्यादा फेल नहीं हो सकता है, वरना आप यहाँ पे तो क्या होगा, आपको किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से कोई भी काम आगे मुश्किल होगा मिलना. तो ये अपॉर्चुनिटी तो बड़ी थी, बट इतने रिस्क में भी हम गए. वो इसीलिए गए क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे, अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस था. तो इसीलिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आगे गए. हमने ये इवेंट के अंदर लगभग 20-25 दिन, 20-20 घंटे काम करा है टीम ने. ग्राउंड पे हम गए, ग्राउंड पे हमने सारा सेटअप किया. हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के काफ़ी अबव एंड बियॉन्ड गए बहुत जगह पे.
हमारा कोई काम नहीं था कि हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ एक्चुअली रहें, गाइड करें उन्हें, डेलीगेट्स को गाइड करें। कुछ लोगों ने उन्हें सामान हेल्प किया उन्हें ले जाने का। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग नज़र देख रहे थे कि ये सारी इनकी जिम्मेदारियां नहीं है। सिस्टम तो है ही, सिस्टम के अंदर चैलेंजेस ये थे कि आखिरी दिन आखिरी मोमेंट पे भी चेंजेस आ रहे थे। इवेंट शुरू हो गया उसके बाद चेंजेस आ रहे थे। उन सभी चेंजेस को, और किसी चेंज के लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त दिया जाता था। 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, टेस्ट करना है, हर एक जोन के अंदर हर एक सर्वर पे वो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। आप ग्रीन करो, हमने हाई प्रोफाइल वीआईपी मूवमेंट रोका हुआ है, आप हमें ग्रीन करोगे उसके बाद हम अलाउ करेंगे। उस प्रेशर सिचुएशन में वो चेंजेस करना, टेस्ट करना, एक बार में उसको सही से करना और हर एक जगह पे उसको पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जिस स्केल की जिम्मेदारी शायद ही हमने या किसी और कंपनी ने भी देखी होगी। देखो, हमारा मेंबर्स सारे इंटरनल मेंबर्स थे जो हमारे हेड ऑफिस सूरत में जो जॉब कर रहे थे, और सभी लोग टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल लोग जो थे, जो सॉफ्टवेयर साइड भी थे, जो हार्डवेयर साइड भी थे। हमारा बेसिकली जो कंपनी है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर, वो हमारा एक हार्डवेयर को भी रिलेट करता है। हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को हम ऐसे 1 to 1 कैसे हैंडल करते हैं, वो सब पूरा टीम के साथ करते हैं हम लोग। उसमें बेसिकली हमने जब हमारी कंपनी फॉर्म किया था जो 2020 में, तब हमने एक्चुअली एक डिजिटल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से किया था। लेकिन जैसे जैसे हमने सॉफ्टवेयर पिच किया, तब हमें ये महसूस हुआ कि डिजिटल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट से ज़्यादा पार्किंग मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है लोगों को। तब हमने ये पूरा एक्सप्लोर किया, ये पूरा डोमेन एक्सप्लोर किया और मार्केट को पेनिट्रेट किया, स्टडी किया, और जितने भी लोग जो कस्टम सॉल्यूशन लेके आए उसको हम एक प्रोडक्ट पे पूरा फोकस करके एक प्रोडक्ट बनाए और मार्केट को पिच किया। सर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे? इतनी बड़ी जगह थी और आप लोग कितने लोग थे? देखो, उसमें हम लोग 22 से 23 लोग वहाँ पे ऑन ग्राउंड थे G20 में। तब अगर पहले ऐसा उन्होंने ये कहा था कि हमारे मोबाइल यूज़ नहीं होगा, हमको वॉकी टॉकी दिया जाएगा। बाद में उन्होंने फिर कुछ उनके वहाँ से फिजिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से हमको ये कहा गया कि आपका मोबाइल आप यूज़ कर सकते हो। तो हम मोबाइल टू मोबाइल यूज़ करते थे। हमारे एक कमांड सेंटर हमने रखा था और हर एक सेट ऑफ गेट्स का हमारा एक क्रू मेंबर था जो कम्युनिकेट कर रहा था कमांड सेंटर से, और इस तरह से हम एक दूसरे से फुल्ली कोऑर्डिनेटेड थे। सूरत के 22 लोगों ने कितने लोगों को संभाला है? कितनी गाड़ियों को वहाँ है? सूरत के 22 लोगों ने 35,000 इन्वाइटीज़ जो थे उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से, जिनसे हमें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला और अच्छी तरह से हमने संभाला है। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज़, सूरत।